So in this thing we are going to see, just for the revision sake, the 1857 revolt had the major reasons. What are the different reasons? The very first reason was, let us see the immediate cause. What is the immediate cause? The 1857 revolt broke out due to grease cartridges. The British East India Company upgraded these cartridges in the form of 1853 Enfield rifle. उसके बाद in March 1857, Mangal Pandey, a sepoy in the Barakpur, refused to use the cartridges and he was hanged to death on 8 April. On 9th May, what happened? In Meerut, 85 soldiers in Meerut refused to use the cartridge, so they were sentenced 10 years of imprisonment. Why? Because of this decision, it sparked off a protest and a rebellion, and all the prisoners, all the the sepoys there, what they did, they went into the jails and released all the prisoners, and they marched on to the Delhi. While coming to Delhi, they wanted a symbolic head. So what they said, who was the one person who can be the symbolic head? Bahadur Shah Zafar. So they are the Bahadur Shah Zafar to be the head of this rebellion. Now initially he was reluctant enough, but after that he said, okay, he would be the, what you can say, he would be the head of this rebellion. ठीक है. इसके बाद में क्या हो गया? The Bahadur Shah Zafar did not show any much interest. However, he consented later. Bahadur Shah Zafar was crowned the emperor of Hindustan. Administration was run in the name of Bahadur Shah Zafar and it was led by Bakht Khan. ठीक है. And उसके बाद में a council was formed, equal number of military and civilian, because when these people came, they were military as well as civilians. So they formed a group for the collective decision making. In that group, what was there? Military rulers भी थे और military जो लोग थे. There was military people as well as civilians, and the currency was printed in the name of Bahadur Shah Zafar. उसके बाद में क्या है? Fall of Delhi. एक तो हो गया, but Delhi कब fall हुआ? The British attacked Delhi in September. In September, the battle lasted for 6 days. However, in September 1857, the British East India Company reoccupied Delhi. Bahadur Shah Zafar was captured and exiled to Rangoon. उसके बाद में 1862 में he took off the last breath. Thus ended the dynasty of Mughal. His sons were killed by the British. उसके बाद में we have seen this. Now let us see the center of revolt. What are the center of revolt? Center of revolt. There are many center of revolt. There are center of revolt as well as the important people there. The very first center of revolt was Lucknow. Lucknow किधर है? Today's Lucknow is capital of Uttar Pradesh. So centers of revolt, the first revolt was Lucknow. The revolt spread to 6 major centers. 6 major centers थे. उसमें से पहला सेंटर क्या है? लखनऊ. The capital of Awadh. वो टाइम पे लखनऊ was the capital of Awadh. उसके बाद में here the sepoys were. सिपाही क्या है? सिपाही किसका नाम है? Soldiers. हिंदी वर्ड क्या है? उर्दू वर्ड क्या है सिपाही का? सिपाही. So the revolt spread to the 6 major centers. The capital of Awadh. Here the sepoys were supported by people who used to be the soldiers of Nawab's army. और तो मालूम है who was the person who deposed of this Awadh? अवध के टाइम पे कौन था? Lord Canning, who deposed of the ruler of Awadh. इसके बाद जो मिलिट्री पूरा डिपेंड करते थे, उसके बाद जो सोल्जर्स क्या है, सोल्जर्स वर अनएम्प्लॉयड, दे जॉइंड दिस रिवोल्ट हियर. उसके बाद में क्या है? द रिवोल्ट स्प्रेड टू 6 मेजर सेंटर्स, कैपिटल ऑफ अवध. हियर द सिपाहीज वर सपोर्टेड बाय पीपल हु यूज्ड टू बी द सोल्जर्स ऑफ नवाब्स आर्मी. द लीडरशिप वाज टेकन अप बाय बेगम हजरत महल. प्लीज राइट डाउन दिस. अगर आप लिख लीजिए लखनऊ में लीडरशिप किसकी थी? लखनऊ. In Lucknow, the leadership was taken by
in Lucknow, leadership role was taken by Begum Hazrat. In Lucknow, the leadership role was taken by Begum Hazrat. मैं ये मैच ऑफ कॉलिंग आ सकता हूँ. उसके बाद में the leadership was taken by Begum Hazrat Mahal. इसके बाद में the BIC forces successfully captured the Lucknow and Begum Hazrat Mahal escaped to Nepal. So she was not caught. She escaped to Nepal. इसके बाद में second सेंटर क्या था? कानपुर. So लखनऊ में क्या याद रखना है आपको? लखनऊ का कैपिटल क्या? लखनऊ was the capital of which princely state at that point of time? अवध. उसके बाद में जो मिलिट्री जो who supported, what group supported in the rebellion? All the military who was disbanded gave their contribution to this rebellion. उसके बाद में who was the leader at the Lucknow? Begum Hazrat Mahal. Was she captured? She went off to Lucknow. उसके बाद she went off to Nepal. उसके बाद second क्या है? कानपुर. The British were fought by Peshwa Bajirao II. कानपुर में 1 से 2 जने थे. कानपुर the British were fought by Peshwa Bajirao II, son Nana Sahib. So Nana Sahib was the person, son and Nana Sahib. He captured Kanpur and declared himself as Peshwa. Who was Peshwa? Yes, in the Marathas. Peshwa was the chief minister. उसमें क्या है? दो there were two. There was hierarchy कैसा थी? शिवाजी के टाइम से छत्रपति बोल के एक था और एक पेशवा बोल के था. The Rajaram II was the last छत्रपति. उसके बाद में पावरफुल कौन बन गए? पेशवा became the powerful. That is the chief minister. ठीक है. पहले चीफ मिनिस्टर का एडवाइजरी रोल था. In the beginning, the chief minister role was advisory, but later it became the major role. इसके बाद में क्या है? Nana Sahib, he captured Kanpur and declared himself as a Peshwa, and however soon he was defeated. उसके बाद में Nana Sahib escaped, but तांत्या तोपे continued to the struggle. So अगर आप कानपुर को देखें, कौन-कौन लीडर थे कानपुर में? In the Lucknow region, who was the leader? Begum Hazrat Mahal. अगर आप कानपुर देखें, कानपुर में Nana Sahib, he escaped, but who continued the struggle? Nana Sahib and later तांत्या तोपे. ये याद रखना है. They continued the struggle. Nana Sahib escaped, but Tantya Tope continued the struggle. At the end, Tantya Tope was captured and had to death. So Begum Hazrat Mahal escaped to Nepal. Tantya Tope escaped. किधर गया नहीं मालूम. Nana Sahib किधर गया नहीं मालूम है. But उसके बाद में Tantya Tope was captured and had to death. Third point of power of center क्या था? Jhansi. In Jhansi, the revolt was led by Rani Lakshmi Bai. When the Britishers defeated her, she escaped and joined the Tantya Tope. Both of them marched towards Gwalior and captured it. Tantya Tope तब देखिए पीछे. नाना साहब चले गए, उन्हें कौन संभाल लिया? Tantya Tope. And this Jhansi में क्या हो गया? The Britishers defeated her. When the Jhansi was Rani Lakshmi Bai was defeated, she joined the hands with Tantya Tope. They went to the Gwalior and they captured it. लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? Gwalior was ruled by Scindia, who were pro-British. Yes, Scindia who were pro-British. So the British counter-attack led by Sir Hugh Rose. आज सिंधिया कौन है? Who is the minister of airport एरोप्लेन का पूरे एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया. आज का क्या बोलते हैं, एयरवेज का पूरा मिनिस्टर कौन है? एविएशन मिनिस्टर. टुडेस एविएशन मिनिस्टर इज ज्योतिरादित्य सिंधिया.
इसका ग्रेट ग्रैंडफादर का टाइम की बात है, ग्रेट से ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पे। तो सिंधिया वर प्रो ब्रिटिश। सो व्हेन द रानी लक्ष्मीबाई एंड तांत्या तोपे वेंट ऑन टू द ग्वालियर, द ग्वालियर में कौन था? सिंधिया। तो सिंधिया along with the Britishers, they were very friendly with the Britishers. So by the help of the Sindhyas, British countered led by Sir Hugh Ross. ठीक है। So these were the three major centers. थे छह। एक तो क्या था? दिल्ली का। दिल्ली was headed by बख्त खान एंड शाह आलम को डिफीट कर दिए। उसके बाद में लखनऊ आया। लखनऊ में कौन था? लखनऊ में बेगम हजरत महल। उसके बाद में कानपुर। कानपुर में कौन है? पहले नाना साहेब, लेटर तांत्या तोपे। उसके बाद में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई when she was defeated joined hands with the तांत्या तोपे। So these were the three major centers. आपके लिए याद रखने का 3 चीजें हैं एग्जाम के लिए। रीजन मीन्स मरने से पहले, कैप्चर करने से पहले ही जॉइंड। जो ग्वालियर में थे ना, तो ग्वालियर में ही एस्केप फ्रॉम द ग्वालियर आल्सो, बट लेटर ही वाज एग्जीक्यूटेड इन कानपुर। सो रीजन फॉर द फेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेल क्यों हुआ? व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल? द रिवोल्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रीजन फॉर द फेल्यूर ऑफ रिवोल्ट, it was not a pan India revolt. बस पहली चीज क्या है? it was not a pan India revolt, it was a localized revolt. एक पूरे क्या, फॉर एग्जांपल सिंधिया, ग्वालियर में सिंधिया है, अगर ग्वालियर भी अपने साथ खड़ा रहता तो झांसी और तांत्या तोपे wouldn't have been killed. Then the intellectuals नहीं करे, और पंजाब के जो सिख्स थे they did not participate in this. So it was not a pan India revolt, limited area of influence. like साउथ इंडिया में कोई भी नहीं है, साउथ इंडिया से भी ज्यादा कुछ नहीं थे। साउथ इंडिया में व्हाट यू कैन से चंद लोग थे। उसके बाद में क्या है? द पेरीमीटर ऑफ द स्टेट्स डिड नॉट जॉइन। जो स्टेट ज्वाइन नहीं करे, कौन से स्टेट ज्वाइन नहीं करे? वो टाइम पे कौन से प्रेसिडेंसीज बड़े बड़े थे? देयर वर मद्रास प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। उसके बाद में ना बंगाल प्रेसिडेंसी के लोग सपोर्ट करे नहीं करे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोग सपोर्ट करे नहीं करे, मद्रास प्रेसिडेंसी के लोग सपोर्ट करे नहीं करे। हैदराबाद स्टेट was pro British because subsidiary alliance was signed there, so it was pro British. मैसूर में क्या था? टीपू सुल्तान था, बट he was क्या बोलते हैं, he was against the British, but वो खत्म हो गया था, टीपू खत्म हो गए थे ये टाइम तक। द रिवोल्ट जब तक हुआ था, टीपू सुल्तान पूरी क्या है, उन लोगों को सबड्यू कर दिए थे, सुल्तान को हटा देके, टीपू सुल्तान हटा देके एक पपेट राजा को रख दिए थे उधर। सो मैसूर डिड नॉट पार्टिसिपेट। देन ट्रावनकोर क्या है? आज तक केरला आल्सो डिड नॉट सपोर्ट। कश्मीर राजा हरि सिंह प्रिंसी स्टेट डिड नॉट सपोर्ट। उसके अंदर राजपूताना माने राजस्थान के लोग, ग्वालियर, सिंधिया, दे डिड नॉट सपोर्ट। तो इसकी वजह से क्या हुआ? दिस फेल। और क्या है उसमें? द सिख प्रोविंसेस इन पंजाब बैक्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पंजाब के जो सिख्स थे बैक्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। According to the historians, the main reason was a fear of Islamic rule. अगर देखिए, who was the emperor? Badshah Zafar has a unique identity of Mughals माने इस्लामिक रूल। और आप देखें तो सिक्स में हाउ मेनी गुरुस वर एग्जीक्यूटेड बाय दिस? बंडा बहादुर औरंगजेब के टाइम पे गुरु को एग्जीक्यूट करे थे, शाहजहां के टाइम पे गुरु को एग्जीक्यूट करे थे। सो दे फियर दैट फिर से मुगल रूल आ गया, तो फिर सिख फिर से वही डायरेक्शन में जाते, सो दे डिड नॉट सपोर्ट। ठीक है। उसके बाद में क्या है? ही वाज द सन ऑफ
Main reason was the fear of Islamic rule. Hence the revolt couldn't assume an all India character or a pan India character. सबसे बड़ा रीजन ये था कि it did not assume the pan India character, localize. और क्या है, अपने जो भी लोग थे ना, ब्रिटिशर्स लोग को रॉन्ग करे थे, लोगों को धोखा दिए थे, तो उन लोगों का अपना बदला लेने के वास्ते ज्वाइन हो गए. उसके बाद में सेकंड रीजन क्या है? लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप. व्हाट इज द लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप? देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कुड यूनाइट ऑल दोस सेंटर्स. अब देखिए लखनऊ में कौन लड़ रहे? बेगम हजरत महल. कानपुर में कौन लड़ रहे? नाना साहब एंड तांजा तोपे. कानपुर में कौन लड़ रहे? झांसी में कौन लड़ रहे? रानी लक्ष्मीबाई. सो इसमें क्या है, कम्युनिकेशन तो पहली बात थी. और वो टाइम पे आज का अगर आप देखिए, वो टाइम पे कम्युनिकेशन कितना था? देयर वाज नो कम्युनिकेशन एंड देयर एक फीलिंग नहीं थी कि भाई हम इंडिया का से लड़ रहे. बोले भाई मेरे को गलत करे मेरे को बदला लेना है, उसको गलत करे उसको बदला लेना है. तो दिस वाज द मेजर रीजन. और एक लीडर मुझे नहीं, 6 लोग 6 लीडर्स है, अपनी अपनी क्या बोलते दिमाग चला रहे होते. एक लीडर को नहीं रखा. नाम को सिंबॉलिक हेड बोल के बोले, लेकिन बहुत ज्यादा इधर क्या है, बादशाह जफर को सिंबॉलिक हेड नहीं माना. दैट इज द प्रॉब्लम. उसके बाद क्या है, देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कुड यूनाइट ऑल दीस सेंटर्स. व्हेन बादशाह जफर डिक्लेयर्ड एज एम्परर, सम ऑफ द मराठास वर एलियनेटेड. सम ऑफ द मराठास वर एलियनेटेड. उसके बाद में क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू देम, बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोकल पावर्स वर मराठा, बट not Mughals. In fact, they were a prominent force before Third Battle of Panipat. Third Battle of Panipat में क्या हुआ? In the Third Battle of Panipat, Mughals defeated Marathas. तो मराठास क्या बोल रहे थे भाई, इन लोग मराठास का ईगो हट हो गया होता कि भाई अब बादशाह जफर है, लेकिन वो टाइम पे पावरफुल कौन है? फिर पावरफुल कौन थे? मराठास थे. तो अगर मराठास को अगर लीडरशिप रोल देते थे तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे. सो मराठास वे एलियनेटेड. उसके बाद में द नवाब ऑफ अवध वांटेड टू रीगेन हिज ओन पावर. द नवाब ऑफ अवध वाज deposed based on maladministration, so he wanted to take his own power and become autonomous, माने independent बनना चाह रहा था उन्हें. उसके बाद therefore it is said, though 1857 revolt had great fighters but not a single leader of caliber. फाइटर्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन लीडरशिप रोल देना आसान नहीं. तो ग्रेट फाइटर्स तो थे, बट लीडर नहीं था. बिकॉज ऑफ दैट the revolt, the rebellion failed. Let us come to the third reason. What is the third reason? No participation of middle class. Now देखिए 1857 रिवोल्ट, अगर आप 1857 और 1947 कंपेयर करो, 1857 और 1947 कंपेयर करो, फर्स्ट रीजन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट में अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या लोकल थी या पैन इंडिया थी? पैन इंडिया थी. माने इतने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ऐसी कोई जगह नहीं थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सेशंस में रखी. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस 25 दिसंबर 1885 में बनी. 1947 तक पूरे सेंटर्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे. तो बाय द 1885 से लेकर 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस एज्यूम्ड ए पैन इंडिया कैरेक्टर. लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था? इट वाज नॉट ए पैन इंडिया. सेकंड क्या है? लीडरशिप कौन प्रोवाइड करे? हु प्रोवाइडेड द लीडरशिप रोल इन 1947? महात्मा गांधी प्रोवाइडेड द लीडरशिप रोल. समझना? लोकल फाइटर्स भी थे. लोकल फाइटर्स बने, फॉर एग्जांपल टेक सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस वाज अ वेरी गुड फाइटर, लेकिन could he provide the leadership role? He was not accepted to many people. Mahatma Vallabhbhai Patel was a very good fighter, but could he provide that? सिर्फ एक ही नाम याद आता, that is महात्मा गांधी. महात्मा गांधी को even the B.R. Ambedkar
could not say no. Even the B.R. Ambedkar could not say no. Even the strongest critic could not say no to Mahatma Gandhi. 1857 और 1947 जब कंपेयर करें तो लीडरशिप की the vacuum of the leadership was filled by महात्मा गांधी. ठीक है. सेकंड क्या है? सेकंड रीजन क्या है? लैक ऑफ डोमेस्टिक लीडरशिप. व्हाट इज द डोमेस्टिक लीडरशिप? इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कही थी? हर स्टेट में अपना एक लीडर रख दिए थे. अब फॉर एग्जांपल ऊपर चले जाओ, तेलंगाना में एक अपना भूदान था, तेलंगाना में गांधीयन था. हर एरिया में अपना एक लीडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का. लेकिन 1857 रिवोल्ट में अलग अलग लीडर आने थे, अपनी बात नहीं करते थे. वो लोग आप बोलते थे लोकल लीडर है, लेकिन बात किसी करते थे? महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते थे. दैट वाज द सेकंड रीजन. थर्ड रीजन क्या है? नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास. इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास. गांधी जी का अगर आपको क्वेश्चन आया कि गांधी जी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी जी प्रिपेयर्ड द मिडिल क्लास फॉर द स्ट्रगल. गांधी जी को महात्मा गांधी इसलिए नहीं बोलते. क्यों महात्मा बोलते? गांधी जी के एक इशारे पे पूरी मिडिल क्लास घर से निकल जाती थी. पूरी मिडिल क्लास घर से निकल जाती और स्विच ऑन करते थे, स्विच ऑफ करते थे. और अगर देखो, लोगों को भड़काना, तहश पे लाना बहुत आसान है, लेकिन एक बार उन लोग का तहश में आके भड़क गए, बात में रोकना बहुत मुश्किल है. लेकिन गांधी जी वो मास्टर इन. What has the Gandhi did? He used to start the rebellion. He used to start the movement. और जैसा ऑफ बोलते थे कि पूरे अपने घर को चले जाते. कोई ये नहीं पूछता था कि भाई क्यों बंद करे. वो गांधी जी बोले तो सही बोले बस. So one of the major contribution of Gandhi ji was to he convinced the middle class for the sacrifice, for the ultimate sacrifice. क्या बोल के करे? अगर आप आज sacrifice देंगे तो your next generation will be in independent India. आज सैक्रिफाइस दियो. आज अपन है, टुडे वी आर इन 2022. किस वास्ते? 1940s में जो सैक्रिफाइस दिए अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वो लोग जो सैक्रिफाइस दिए, आज अपन इंडिपेंडेंट इंडिया में. अदरवाइज वी वुड हैव बीन अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट, नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया वेयर एजुकेशन इन इंग्लिश. वो टाइम पे क्या इंग्लिश मालूम था मिडिल क्लास को? 1947 में इंडियन इतनी अच्छी इंग्लिश बात करते थे, ब्रिटिश को भी इतनी आते थे. इंडियंस मास्टर थे ब्रिटिश. और एक गलती जो ब्रिटिशर्स वाले करे, इंग्लिश सिखाए. अगर ब्रिटिशर्स अपने लोगों को इंग्लिश नहीं सिखाते थे, भाई जो तेलुगु में बात करना चाह रहा था भाई तेलुगु में बात कर ले, हिंदी में बात करना चाह रहा हिंदी में बात कर ले. लेकिन ब्रिटिशर्स वाले क्या गलती करे? इंग्लिश सिखा दी. इंग्लिश किसको सिखाए? थोड़े लोगों को सिखाए. थोड़े लोग क्या है भाई, उन लोग दिखते इंडियन, लेकिन उन लोगों का दिमाग रहता ब्रिटिश का. वैसे लोगों को प्रिपेयर करने के वास्ते इंग्लिश सिखाए. लेकिन अपने लोग तो विचार निकले, पूरे इंग्लिश जैसा सिखाए, बढ़ चढ़ के इंग्लिश सीखे. और मेनी ऑफ द लीडर्स इंग्लिश सीख के इंग्लैंड जाके आईएएस ऑफिसर्स बन गया. वो टाइम पे इतना आसान नहीं था. आज अपने पास सब फैसिलिटीज है, आज अपन पास करना बोले तो ऊपर नीचे हो जा रहे. लेकिन वो टाइम पे इंग्लिश सीख के ब्रिटिश जाके उधर की इंटीरियर सिविल सर्विसेज पास करके आना बोले तो, और शिप में जाते थे, शिप में आते थे. आज नहीं है कि भाई आज बुक फ्लाइट करो चले जाओ. शिप में जाते थे, शिप में कितना स्ट्रगल करते थे लोग. तो उन लोग का इंग्लिश सीखे, उन लोगों की पॉलिसीज देखे, उन लोगों का रूल ऑफ देखे, इधर आके अप्लाई करें. चाहे वो आप महात्मा गांधी ले लो, चाहे आप वो सुभाष चंद्र बोस ले लो, चाहे वल्लभ भाई पटेल ले लो, चाहे नेहरू ले लो. उन लोगों की इंग्लिश सीखे, उन लोगों की दवा उन लोगों को ही दी. उन लोगों की दवा उन लोगों को दी. नेक्स्ट, नो पार्टिसिपेशन फॉर द मिडिल क्लास. Middle class India were getting educated in English. Many believe that British are getting reforms in India. वो टाइम पे बहुत सारे मिडिल क्लास लोग इंग्लिश सीख रहे थे, और ये सब देखे भाई ब्रिटिश क्या कर रहे थे, लोगों को मॉडर्न बना रहे. लेकिन उन लोगों का क्या था?
ऐसे लोगों को इंग्लिश सिखा रहे थे तो दिखते इंडियन लेकिन रहते दिमाग से ब्रिटिश। वायलेंस नेवर अट्रैक्टेड अपील टू द मास। ठीक है, याद रखिए कभी भी वायलेंस से कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, वायलेंस नेवर बिगेट्स पीस। तो वो टाइम पे क्या हो गया था कि भाई अगर मिडिल क्लास है, अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर आज भी आप देखो, अगर अपन जो एरिया में है, अगर बाजू गली में या बाजू की कॉलोनी में भी वायलेंस चल रहा, आप क्या बोलते हैं? हम आपको कहीं बाजू की गली भी छोड़ दो, बाजू आज तो फ्लैट हो गए, आज आपका ये फ्लैट है, बाजू वाले लड़ ले रहे, क्या बोलते हैं आप? अपने घर में आके बैठो बोलते, लड़ले तो करो लड़ले ना। तो मिडिल क्लास नेवर एक्सेप्टेड वायलेंस। बट और वो टाइम में वायलेंस बोल के बताए थे ये लोग, जो आर्मी आगे आए थे, महात्मा गांधी क्या करे, वायलेंस का नाम ही नहीं बोले। क्या बोले महात्मा गांधी? व्हाट इज महात्मा गांधी सेड? नॉन वायलेंस। अब वायलेंस अट्रैक्ट नहीं करो, नॉन वायलेंस वो जबरदस्त अटैक कर लिया। और ये बोले भाई आज मारा खाओ कि तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन सुकून से रहते। तो ग्रैंड चिल्ड्रन को देखे आज ना मारा खा ले, दे गिव अल्टीमेट सैक्रिफाइस। सो दिस वाज द डिफरेंस। इसके अंदर वायलेंस नेवर अट्रैक्टेड अपील टू द मासेस। और क्या था? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज क्या थे? रिसोर्सेज क्या थे? सबसे पहले कम्युनिकेशन होना था, सबसे पहले कम्युनिकेशन होना था। कम्युनिकेशन किधर था उधर? वो टाइम पे व्हाट्सएप तो नहीं था, वो टाइम पे फेसबुक तो नहीं था। वो टाइम पे अगर कोई डिस्टेंस करता ना तो लिखना, पहले तो लिखना, लिंक भी किधर मिलती थी? पहले लिखना, फिर एक आदमी पैदल जाना, बीच में उन्हें किधर मारा खाता या क्या होता उसको किसको भी नहीं मालूम होता था। एक आदमी लिखना, उन्हें पैदल जाना, और वो क्या, वो टाइम पे ट्रेन भी नहीं है, बसेस भी नहीं है, कुछ भी, पैदल जाना, और उन्हें आता नहीं मालूम, इधर तक मैसेज पहुंचता ना पहुंचता नहीं मालूम रहता था। तो वो टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो टाइम पे रिसोर्सेस नहीं थे, वो टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं था, और वो टाइम पे कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे। वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी इंडिया में। सो इट वाज ऑल दीज आर द रीजंस बाय द रिवोल्ट फेल्ड। अब लास्ट क्या देखिए, रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। क्या हुआ अल्टीमेटली? रिवोल्ट से क्या फायदा हुआ? इंडिया का फायदा हुआ नहीं हुआ? देखिए, so results of the revolt, what is the first revolt, what is the result of the, what is the first result? British East India Company were stripped of all the power, माने British East India Company was liquidated. We have seen that liquidated माने जितना भी एसेट बनाए थे वो बेच दिए। तो जो 24 डायरेक्टर्स थे 2016 अंडर क्या बोलते हैं पैसे लगाए थे, उसमें से 24 डायरेक्टर they became a 24 directors and one governor general। तो कंपनी को पूरे को डिसॉल्व कर दिया। What is the, this was the first consequence of 1857 revolt. British East India Company was stripped of all the powers. Second क्या है? Queen Victoria declared Empress of India। कंपनी चले गई, क्वीन क्राउन आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्टेड गवर्निंग थ्रू 1858 एक्ट। पहले क्या था? डेवलपिंग एक्ट 1873 आया, फिर उसके बाद में फिक्स इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद में चार्टर एक्ट है। अब ये चार्टर एक्ट क्या थे? इनडायरेक्ट रूल था। अब डायरेक्टली क्या हुआ 1857 रिवोल्ट के बाद? क्राउन डायरेक्टली टुक द चार्ज बाय थ्रू द गवर्निंग एक्ट ऑफ 1858। वी आर सीन इन द क्राउन रूल। उसके बाद में क्या है? गवर्नर जनरल ऑफिस वाज रिप्लेस्ड बाय वाइसरॉय। और क्या हुआ? इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ऐसा कंपनी को बंद कर दिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी खत्म हो गए। उसके बाद में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यूज्ड टू लुक एट द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी निकाल दिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वाइसरॉय। इसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश्ड। व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अगर कोई भी रूलर को अपनी ब्लड रिलेशन से क्या बोलते हैं जनरेशन नहीं है, तो दैट इफ दैट रूल विल गो ऑटोमेटिकली चीज टू बिकम द ब्रिटिशर्स को आ जाते हैं। झांसी वाज वन ऑफ द एग्जांपल। पेशवा बाजीराव टू why they rebelled against Britishers, because they were not made the king. That is the reason. Jhansi said कि भाई मेरा जो बेटा है उसको, that was adopted, he was adopted. Jhansi said कि भाई जो my son declared him as a king, I will give lifelong loyalty to Britishers,
They did not accept. Why? They forcibly took the rule. उसके बाद में क्या है? Doctrine of class was abolished. The right of adopted son recognized. अगर यही पहले करते थे तो the right of the adopted son was recognized. अगर यही पहले कर लेते थे तो लोग 1857 का डिवोर्स ही नहीं होता. उसके बाद में क्या है? लास्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? Till 1947 no further annexations were made by the Britishers. So these were the results of 1857 revolt. ठीक है, समझ में आया? So this was 1857 revolt. So कल we